Okay, so chalo, we will start. I don't know, there is some kind of network issue, I guess. Okay, we have done till sentence number 4, right? है ना? We have done till sentence number 4 only, correct? Yeah. Yes, ma'am. So we need to start with sentence number 5. Come on. Yesterday I remember that you guys told me that it should be I have known him for a long time. Correct. And in question number 6, it was he has been ill since last week. Correct. What about sentence number 7? What about question number 7? मैम जहाँ पे ये 4 लिखा हुआ है वहाँ पे सिंस आएगा ना? क्यों? मतलब 5 साल के लिए नहीं मैम, 5 साल से रह रहे ना मतलब। तो उसके लिए सेंस आता है। अच्छा मैं बताती हूँ, कंफ्यूज मत होना। आई लेट यू नो सेंस ठीक कब है। आता है, फॉर कब आता है, मैं अभी बताऊंगी। हैव लिव्ड, ओके, आई जस्ट राइट इट डाउन, इट विल बी हैव लिव्ड, ओके। बच्चे देयर इज अ कंसेप्ट इन सेंटेंस नंबर 5, 6, 7। देयर इज अ कंसेप्ट, द कंसेप्ट इज कि जब कभी भी हम किसी भी सेंटेंस में सिंस और फॉर के साथ, ठीक है, जब कभी भी हम किसी भी सेंटेंस में सिंस और फॉर के साथ टाइम स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, सिंस और फॉर के साथ टाइम स्पेसिफाई करते हैं, तो ये सेंटेंसेस हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में होते हैं, ठीक है। These sentences are always in perfect continuous tenses. It can be present perfect continuous, it can be past perfect continuous, it can be future perfect continuous. I'll let you know the difference between present, past and future later on. But basically, whenever since or for के साथ we will define the time period in a particular sentence, then that sentence will always be in perfect continuous tense, right? Now, since in these two sentences, for and since has been used with the time period mentioned here. Right? Since and for has been used with the time period mentioned here. So what you guys will do? You will, according to the rule, you will use perfect continuous tense. But definitely, here we are not using perfect continuous tense. Here present perfect tense are being used. Why so? Why so? Why we are doing so? Can anyone let me know why we are doing so? कोई बता सकता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं बताना चाहता, तो मैं खुद ही आपको बता देती हूँ, बिकॉज ऑफ स्टेटिव वर्ब्स। मैंने आपको बताया था इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वी हैव डिस्कस्ड स्टेटिव वर्ब, यस्टरडे ओनली वी डिस्कस्ड स्टेटिव वर्ब्स. So what we have discussed in stative verb is, like, we do not use ing form with them. With that particular verbs, we do not use ing form. That is what we have discussed already, right? So, for particularly, specifically for stative verbs, if there is a since and for in the sentence, we can use present perfect tense also. Okay. Thing is, there's no space to write. One second, I'll write it down here. Thing is, कि for any action which has been started in the past and going on at the present moment, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ
और प्रेजेंट मोमेंट तक कंटिन्यूड है, खत्म नहीं हुआ. ओके, इट इज इन कंटिन्यूएशन एट द प्रेजेंट मोमेंट. एंड with since and for time has been specified. With since we specify point of time. With for we specify period of time. ठीक है, सिंस के साथ हम पॉइंट ऑफ टाइम स्पेसिफाई करते हैं और फॉर के साथ हम पीरियड ऑफ टाइम स्पेसिफाई करते हैं. तो अगर यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ टाइम स्पेसिफाइड है या फिर ये पीरियड ऑफ टाइम स्पेसिफाइड है, तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में हम वहां पर हमेशा कौन सा टेंस यूज करेंगे? हम वहां पे प्रेजेंट perfect continuous tense use करेंगे when the action has been started in the past and is going on at the present moment. So in that particular circumstances we will use present perfect continuous tense. Okay, but here verb which is used in this sentence if they are stative verbs. ठीक है, अगर इसी सेंटेंस में जो वर्ब यूज है, द वर्ब विच हैज बीन यूज्ड इन द सेंटेंस, इफ दैट इज स्टेटिव वर्ब, देन with since and for also we can use present perfect tense. So stative verbs are the exceptions for it. Okay, stative verbs are the exceptions for it. Now you guys know that no is stative verb. You guys know that be is also stative verbs. So that is the reason in this particular sentence you are writing, I have known him for a long time and he has been ill since last week. Got it or not? Have you understood or not? किसी को कोई डाउट है? Got it. Now comes question number 7. See, the word which has been used in question number 7, that is not stative verb. Okay, the verb live is not stative verb. And here also we are telling time period with for. With using that word for, we are mentioning time period. And live is also not stative verb. Then why we are doing we have lived in this house? तो हम क्यों यहाँ पर we have lived in this house लिख रहे हैं? We have been living in this house में क्या प्रॉब्लम है? Why we are changing it? Can anyone tell me why we are doing so? If anyone wants to. I'll go for a wild guess, because now that they are saying, but we are moving to another house today, so they have completed their duration of living there. Yes, definitely. That is why we are using we have lived. If there will be full stop here, like suppose the sentence would be like, we have been living in this house for 5 years. तो फिर ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है. Then this sentence is absolutely correct. We have been living in this house for 5 years is absolutely correct sentence. But the time we are adding a clause here that but we are moving to another house today. That means the duration of the time has been finished. वो आज की आज, वो एक्शन अब कंटिन्यूएशन में नहीं है, वो एक्शन आज के आज खत्म हो रहा है. ठीक है, we are moving to another house today. वो एक्शन आज के आज खत्म होने वाला है, वो अब कंटिन्यूअस प्रोसेस में नहीं रह गया. सो दैट इज द रीजन वी आर रिमूविंग बीइंग लिविंग हियर एंड वी आर राइटिंग वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 years बट वी आर मूविंग टू अनदर हाउस टुडे. गॉट इट? क्लियर हुआ सबको? समझ आया why we have done so? हाँ Ma'am, so the trick with stative verbs is we need to remember all of them and where we need to locate the sentences where stative verbs are, right?
to See, spot the basically, errors? you don't need to remember all the stative verbs. Basically, I guess stative verbs are very easy to remember. Like you can say all the sense organs like watch, see, feel, hear. These comes under verbs of perception. Remember, prefer, suppose. You know the common words from which questions are asked. You just need to remember that words. If you're gonna learn each and everything in a particular slide, if I have written 20 things and you're going to learn all the 20 things, then you will forget it. And definitely if I'm talking about the words part, okay, that it is not easy to remember these many words. Moreover, like in each and every topic there will be list of 20 words. Okay, and definitely you will mix it up. Like if I'll tell something related to reflexive pronoun, you will mix it with emphatic pronoun. If I'm gonna tell you something about stative verb, you're gonna link it with linking verb, and this mix up will be continued. So basically, whatever I'm telling, the most relevant and the preferable word, like which has been asked in the previous year paper, just try to solve, practice that particular question so that you can get familiar with that particular words only, and you don't have to memorize much. Okay, if you're going with the memorizing partner, you will forget it soon. And if you're trying to understand it and practice it more and more, then it will retain in your mind for some time. Got it? Clear? बोलो, कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो, समझ आया क्या मैं कहना चाह रही हूँ? Like you cannot remember all the verbs and all the words in a short period of time. You'll have to give some time to English for that, and definitely you don't have that much time, right? Because examination are on your head. So just do the important part at the present moment. That I'll suggest. Okay. I hope this slide is clear to everyone, right? The slide is clear to everyone. Question number 1 to 7. And the rules which I tried to explain from this particular slide, particularly from this particular slide, it is clear to everyone, right? Hannah? Great. So I'll carry on further. Okay. This one is very, very important. Just mark it down. This one is very, very important. It is coming in the exam continuously from past 3 years. The question from this particular thing is available in all the examination. In 2017 also it was there, in 2000, sorry, in 2018, in 2017 IBPS it was there, in 2018 SBI is what it was there, in 2019 both, in both the examination, in IBPS also and in SBI also, in both the examination there were questions from this particular thing. Okay, so basically I would say this is one of the most important question, because it is coming from the last 3 to 4 years continuously. From this particular thing questions are there in the examination. They're just twisting and rolling in these things only. Okay, so mark it important and definitely write it down in your notebook as important thing, and be in touch with these things, because इससे questions are in examination में. ठीक है, so he didn't call me since he moved to Australia. What you will do in this sentence? Has not. Where, like here you are saying he has not. So definitely it will be called, है ना? And what about question number 2? Has not gone. Okay.
वेरी गुड, वेरी गुड गाइस. सो बेसिकली थिंग इज, पहले ना दो चीज बड़े ध्यान से समझना. सिंस जो वर्ड है ना, वो दो सेंस में यूज किया जाता है. ठीक है. सिंस आपका टाइम डिफाइन करने के लिए भी यूज किया जाता है, और सिंस एज अ कंजंक्शन भी यूज किया जाता है. सिंस जब टाइम डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है तो वो कंटिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है, जहां पर आप सिंस पॉइंट ऑफ टाइम डिफाइन करते हैं. जैसे कि हम बोलते हैं सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 27th October. Sometimes you must have said, I have this, I'm suffering from this, I have been suffering from disease since childhood. बचपन से ही मुझे है. तो काइंड ऑफ बेसिकली सिंस इज यूज टू डिफाइंड पॉइंट ऑफ टाइम in certain circumstances, correct? And in certain cases since are used as conjunction also. तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं ना, स्टेटिव वर्ब के सेंस में वो टाइम डिफाइन करने के लिए यूज किया जाएगा. इन पर्टिकुलर सेंटेंसेस में सिंस क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट कर रहा है. दैट मीन्स सिंस इज बिहेविंग हियर एज कंजंक्शन. ठीक है. इस पर्टिकुलर सेंटेंसेस में सिंस किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कंजंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है. अब दो सेंटेंसेस है. ठीक है. सिंस से जॉइंड है, तो सिंस दो सेंटेंसेस को जॉइन कैसे कर सकता है, या तो बीच में आएगा दोनों सेंटेंसेस के, या फिर सिंस सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा और ये तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस, यहाँ पे कॉमा लगेगा और ये तुम्हारा सेकंड सेंटेंस. इस तरीके से आप दो सेंटेंस को सिंस से कनेक्ट कर सकते हो. करेक्ट. सिंस जहां भी यूज्ड है, ठीक है, सिंस जहां भी यूज्ड है उसके जस्ट बाद जो सेंटेंस है, जैसे सिंस यहाँ पे लगा हुआ है तो इसके जस्ट बाद जो सेंटेंस है वो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में होता है. ठीक है. सिंस के जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस में होता है. अब यहाँ पर सिंस यूज्ड है तो इसके जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस है वो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में होगा. ठीक है. दोनों सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस में होगा. उसको भर दीजिए प्लीज. तो दोनों सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में होगा. जो ये आपका सेंटेंस बच गया ना, इधर जो आपका ये वाला सेंटेंसेस जो बच गया, ये सेंटेंस आपका हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा. हमेशा मतलब हमेशा, हमेशा ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा. तो सिंस वाला जो क्लॉज होगा, जो क्लॉज सिंस से कनेक्टेड होगा, दैट विल ऑलवेज बी इन सिंपल पास्ट टेंस एंड द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल ऑलवेज बी इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. So it will be, he has not called me since he moved to Australia, and since he joined that company he has not gone anywhere for outing. Is that clear? बोलो. चूंकि, चूंकि के सेंस में, क्योंकि के सेंस में यूज किया जाता है. अब आता है पास्ट परफेक्ट टेंस. भाई पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस को बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं पास्ट का पास्ट. ठीक है. जो बहुत सिंपल सा लैंग्वेज होता है ना, उस बहुत सिंपल से लैंग्वेज में पास्ट परफेक्ट टेंस को बोलते हैं पास्ट का पास्ट. ठीक है. पास्ट का पास्ट क्या डिफाइन कर रहा है? मतलब सिंपल पास्ट से भी, मतलब जो आपकी बहुत पुरानी बातें होती हैं उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, पास्ट परफेक्ट टेंस का इन आर नॉर्मल सेंटेंस यूजेस बहुत कम है. ठीक है. पास्ट परफेक्ट टेंस का इन अ नॉर्मल सेंटेंस यूजेस बहुत कम है. तो ये यूज ज्यादा कब किया जाता है? ये आपका ज्यादा यूज किया जाता है कंपाउंड सेंटेंसेस में. कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं? बताया था ना, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस.
नहीं बताया था, बताया था नहीं बताया था, कुछ तो बोलो, बताया था। सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कोई कुछ बोलेगा ही नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। मुझे जैसे याद आ रहा है मैंने इंट्रोडक्शन के पार्ट में कराया है। अब कोई बोल दे कि कराया है तो भाई समझ में आए, कोई सब बोल दो नहीं कराया है तो मैं बता दूंगी एक बार। 5 मिनट से ज्यादा थोड़ी ना लगेगा उसको समझाने में। बोला था। अच्छा, रिया आप न्यू स्टूडेंट हो? रिया न्यू स्टूडेंट है? हे भगवान, एक तो तुम लोग के आंसर्स इतने लेट आते हैं ना कि आई यूज टू गेट बोर्ड। हाँ, मैम एक बार बता दीजिए। बता ही दूँ, बता ही देती हूँ। यस मैम। बेसिकली मैं पता नहीं मैम। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। जिसको, मेरे को पता है कि किसी को याद नहीं है, अगर याद रहता ना तो इतना टाइम नहीं लगता बताने में। देखो, सेंटेंसेस को ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज योर सिंपल सेंटेंस, सेकेंड इज योर कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, दीज आर नॉट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। 3 पार्ट में सेंटेंस को डिवाइड किया जाता है, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। आई प्ले फुटबॉल, आई राइट अ लेटर, शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी इज डांसिंग इन द ऑडिटोरियम, he has done this work, he wants to do this work, he completed this work on time. All these are simple sentences. What is compound sentences? Compound sentences are the sentences in which there is 2 subject and 2 verb. They are connected with a conjunction. They are connected with a conjunction. When I visited his house yesterday, he had already left for Delhi. अब यहाँ पर एक सेंटेंसेस है I visited his house yesterday, second sentence है he had already left for Delhi, and these 2 sentences are connected with a conjunction that is when. तो जब 2 सेंटेंसेस किसी कंजंक्शन से कनेक्टेड होते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होता है? जब किसी सेंटेंस में मोर देन 2 सब्जेक्ट, मोर देन 2 सब्जेक्ट और मोर देन 2 वर्ब्स हो। मोर देन 2 सब्जेक्ट और मोर देन 2 वर्ब हो तो उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैविंग मोर देन 2 सब्जेक्ट एंड मोर देन 2 वर्ब। तो ये जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, जिसको हम पास्ट का पास्ट बोलते हैं, मतलब सिंपल पास्ट से भी पास्ट की जो पुरानी चीजें जो होती हैं वो हमेशा कंपाउंड सेंटेंसेस में यूज होती हैं। अब कंपाउंड सेंटेंसेस में अगर आप बात करो, जैसे यही सेंटेंस लेते जो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस यस्टरडे ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर दिल्ली। पहला एक्शन क्या है? मेरा उसके घर जाना। ठीक है। पहले मतलब जब मैं उसके घर गई उससे पहले वो दिल्ली के लिए निकल चुका था, तो पहला एक्शन क्या है? उसका दिल्ली से चले जाना। उसके बाद मैं उसके घर गई हूँ। डेफिनेटली अगर मैं उसके दिल्ली से, अगर हम उसके दिल्ली निकल जाने से पहले मैं घर चली जाती तो वो मुझे मिल जाता, लेकिन पहले वो दिल्ली के लिए निकल गया। देन आई विजिटेड हिज प्लेस। करेक्ट और नॉट? पहला एक्शन क्या है? उसका दिल्ली से निकल जाना, और दूसरा एक्शन क्या है? मेरा विजिट करना। ये है 2 एक्शंस। It is possible that there can be more than one connector. It is possible that the sentences are connected with comma. I'll give you an example of complex sentences as well.
डोंट वरी अबाउट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड सेंटेंसेस से एक जस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे कि इसमें क्या है, फर्स्ट एक्शन है उसका दिल्ली के लिए निकल जाना, सेकेंड एक्शन है मेरा उसके घर को विजिट करना. राइट और रॉन्ग? डू यू गाइज अग्री विथ मी इन दिस पॉइंट और नॉट? यस, यू आर अग्रीइंग विथ इट. अब मैंने बोला कि पास्ट परफेक्ट टेंसेस, पास्ट का पास्ट मतलब जो सबसे पुराना एक्शन है, जो सबसे पहले हुआ होगा, वो कौन से टेंस में होगा? वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में. ठीक है. और उससे पहले का जो एक्शन है वो कौन से टेंस में होगा? वो होगा सिंपल पास्ट टेंस में. अब सबसे पहले क्या हुआ? वो दिल्ली चले गया, तो ये तुम्हारा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा. उसके बाद मैं उसके घर पहुंची, तो इसके साथ क्या होगा? इसके साथ सिंपल पास्ट टेंस होगा. ठीक है. इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट बनाते हैं. ठीक है. अगर यहाँ पर चीजें क्लियर नहीं हुई है तो कुछ और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. अब जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके सामने रखे. ट्राई टू सॉल्व इट विद द एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन जस्ट नाउ. अभी जस्ट नाउ जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उससे इन क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करने की कोशिश कर. Had seen. Okay. Had fled. Have finished. Had met, have met. Okay. Had preceded. Okay. Had preceded.
I'm done with all the answers. You guys can check, and if you feel like there is any changes you want to do, I'll just do it. Again, I'm saying these are not my answers, these are the answers given by you guys only. मैं बता दूं, should be had arrived. कहाँ पर भाई? should be had arrived. 7 में the doctor should be had arrived. क्या जरूरत है इतना लंबा सा लिखने का? कोई जरूरत है क्या? मैं आंसर्स बताऊं? अगर तुम लोग कहो मुझे मौका दो आंसर बताने का तो मैं बताऊंगी. नो मैम, आई मीन हैड अराइव्ड आना नहीं चाहिए. अच्छा, ओके ओके, चलो इट्स माय टर्न नाउ. दो सेंटेंस है बिफोर से कनेक्टेड है, ठीक है. दो सेंटेंस है आफ्टर से कनेक्टेड है. इधर साइड में बताऊं, इसको डिलीट करके. दो सेंटेंस है बिफोर से कनेक्टेड है, दो सेंटेंस है आफ्टर से कनेक्टेड है, या फिर बाय द टाइम के साथ, या फिर बाय द टाइम के साथ दो सेंटेंस कनेक्टेड है. ठीक है, दो सेंटेंसेस बिफोर से कनेक्टेड है या आफ्टर से कनेक्टेड है या बाय द टाइम से कनेक्टेड है. समटाइम्स सेंटेंस विल गेट कनेक्टेड विथ व्हेन ऑल्सो. तो जब इन कंजंक्शन से सेंटेंस कनेक्टेड है, क्या होगा? एक फर्स्ट एक्शन होगा जो पहले हुआ होगा और एक सेकेंड एक्शन होगा. ठीक है. जब आफ्टर से कनेक्ट करोगे तो अलाइनमेंट ऑफ द सेंटेंस विल गेट चेंज. मतलब यहां पर सेकेंड एक्शन आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा? फर्स्ट एक्शन. ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ सेंटेंस विल गेट चेंज. बाय द टाइम से जब कनेक्ट करोगे तब भी यही होगा, अलाइनमेंट ऑफ सेंटेंस विल गेट चेंज. तो यहां पर सेकेंड एक्शन आ जाएगा, यहां पर फर्स्ट एक्शन आ जाएगा. ठीक है. अब जब दो सेंटेंस बिफोर आफ्टर बाय द टाइम से कनेक्टेड हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता फर्स्ट एक्शन किधर आ रहा है. मतलब अलाइनमेंट ऑफ सेंटेंसेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हो सकता है सेकंड एक्शन पहले आ रहा है, हो सकता है फर्स्ट एक्शन बाद में आ रहा है, हो सकता है फर्स्ट एक्शन पहले आ रहा है, हो सकता है सेकंड एक्शन बाद में आ रहा है. अलाइनमेंट ऑफ सेंटेंस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको हमेशा फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट टेंस में रखना है और सेकेंड एक्शन सिंपल पास्ट टेंस में रखना है. यहां पर भी आपको सेकेंड एक्शन सिंपल पास्ट टेंस में रखना है, फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट टेंस में रखना है. और यहां पर भी आपको सेकेंड एक्शन सिंपल पास्ट टेंस में रखना है और फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट टेंस में रखना है. ठीक है. तो जब कभी भी दो सेंटेंस बिफोर आफ्टर बाय द टाइम से कनेक्टेड है तो या व्हेन से कनेक्टेड है तो फर्स्ट एक्शन विल ऑलवेज बी इन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड सेकेंड एक्शन विल ऑलवेज बी इन सिंपल पास्ट टेंस. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात सबको समझ में आ गई?
अब इसके अकॉर्डिंग यूजेस देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आप सबका आंसर करेक्ट है वैसे तो, फिर भी मैं आपको वन बाय वन बता देती हूँ। आई सॉ हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। उसके गाड़ी रोकने से पहले मैंने उसे देख लिया। तो पहले क्या हुआ, पहले मैंने देखा, बाद में गाड़ी रुकी, राइट। तो यहाँ पर इन द सेंटेंस इट विल बी आई हैड सीन हिम। बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर फ्लेड। उसके कुछ भी समझने से पहले रॉबर भाग गया। तो पहला एक्शन क्या है, रॉबर का भागना, है ना। उसके कुछ भी समझने से पहले ही तो रॉबर भाग गया ना। तो फर्स्ट एक्शन इज व्हाट, रॉबर का भागना। तो इट विल बी द रॉबर हैड फ्लेड। इन सेंटेंस नंबर 3, आई मेट हिम आफ्टर आई फिनिश्ड माई वर्क। मैं उससे मिली मेरा काम खत्म करने के बाद। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने मेरा काम खत्म किया, उसके बाद मैं उससे मिलने गई। तो इट विल बी आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। By the time I reached the theater, the show started. जब तक मैं थिएटर पहुंची, शो शुरू हो चुका था। फर्स्ट एक्शन क्या है, शो का शुरू होना, बाद में मैं थिएटर पहुंची, तो इट विल बी द शो हैड स्टार्टेड। अब किसी ने, देवप्रियो ने मुझसे पूछा था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल। अब इस सेंटेंस को देखो देवप्रियो, अमर रीच्ड हिज विलेज, व्हेन से कनेक्टेड है दो सेंटेंस, यहाँ पर कॉमा है। ही फाउंड, फिर ये सेंटेंस दैट से कनेक्टेड है, द न्यूज अबाउट हिम प्रीसीडेड हिम। दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। 3 सब्जेक्ट और वर्ब है इसमें। पहला अमर है और वर्ब रीच्ड है, दूसरा सब्जेक्ट ही है, वर्ब फाउंड है, तीसरा सब्जेक्ट द न्यूज है और वर्ब प्रीसीडेड है। मोर देन 3 सब्जेक्ट, मोर देन 2 सब्जेक्ट एंड मोर देन 2 verb, 3 subject and 3 verbs are there. So when Amar reached his village, he found that the news about him preceded him. जब अमर अपने विलेज पहुंचा, उसने पाया कि उसके आने की खबर उससे पहले आ चुकी थी। तो सबसे पहले क्या हुआ, उसके जाने की खबर आई, उसके पहुंचने की खबर आई, उसके बाद अमर विलेज पहुंचा, उसके बाद उसने पाया। So the first action is what? That the news which has been spreaded in the village. So it will be the news about him had preceded him. ठीक है? The doctor arrived before the patient died. पेशेंट के मरने से पहले डॉक्टर आ गया। तो फर्स्ट एक्शन क्या है, डॉक्टर का आना। The doctor had arrived before the patient died and the doctor arrived after the patient died. डॉक्टर आया लेकिन कब, पेशेंट के मरने के बाद। तो फर्स्ट एक्शन क्या है, पेशेंट का मरना। सो इट विल बी द डॉक्टर अराइव्ड आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। Ma'am, generally for this kind of word like born and died, we don't use was died, were died, like this stuff, sort of, like we don't use, no? Like we just simply use died. He died on October 22. हाँ तो ठीक है। He has died recently, ऐसा किसने कहा, he died recently हम थोड़ी बोलते, he has died recently। बॉर्न के And the साथ same तो आई is अग्री, with born. बॉर्न के साथ तो आई अग्री, हम ज्यादा नहीं, मतलब वहाँ पे हैज नहीं लगा, मतलब वहाँ पे हम उसके ज्यादा वेरिएशन ऑफ फॉर्म्स यूज नहीं करते, बॉर्न ही ज्यादातर यूज किया जाता है। बट डाइड के साथ तो ऐसा सीन नहीं है, ठीक Okay. है। बॉर्न के साथ हम, मैं मानती हूँ, डाइड के साथ ऐसा सीन नहीं है। सो इट विल बी द डॉक्टर अराइव्ड आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। किसी को कोई डाउट है इस स्लाइड में तो वो मुझसे पूछ सकता है।
याशिका, तुम्हें डाउट है? याशिका, एक तो मुझे मैसेज लेट मिल रहा है. नो मैम, ठीक है. नाउ विल डील विथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. And the last thing we are doing in today's class, future perfect tense. डेफिनेटली परफेक्ट टेंस का मतलब तो अब तक तुमको समझ में आ ही गया होगा. ऐसा कोई एक्शन जो कंप्लीशन का सेंस देता है. प्रेजेंट परफेक्ट में भी कंप्लीशन का सेंस था जो अभी अभी खत्म हुआ हो. पास्ट परफेक्ट में भी कंप्लीशन का सेंस था जो पहले खत्म हो चुका, उसके लिए यूज करते हैं. और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में का मतलब है ऐसे एक्शंस जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा. जैसे ये एग्जाम्पल ले लेते हैं. वी विल हैव कंप्लीटेड द सिलेबस बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. खैर कि ये तो पॉसिबल नहीं है. बाय द एंड ऑफ, हम लोग खत्म कर लेंगे जनवरी के महीने तक. ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ जनवरी इफ आई से, तो जनवरी के एंड तक हमारा सिलेबस खत्म हो चुका होगा. कंप्लीशन का सेंस दिया, विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर. ठीक है, तो परफेक्ट टेंसेस जो होता है ना वो हमेशा कंप्लीशन ऑफ एक्शन का सेंस देता है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस गिव्स समथिंग विच विल गेट कंप्लीटेड एट एनी पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर. ठीक है ना. अब इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, शैल और विल के साथ हैव लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं. ठीक है, और यहाँ पे जब नेगेटिव सेंटेंसेस होगा तो शैल और विल के साथ नॉट लगा लेंगे और नॉट लगाकर हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा लेंगे. और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वी विल यूज शैल और विल बिफोर सब्जेक्ट. ओके, नाउ इस पे बेस्ड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं दैट इज अगेन बेस्ड ऑन दी कंपाउंड सेंटेंसेस. अब यहाँ पर दो सेंटेंसेस है जो बाय द टाइम से कनेक्टेड है. ठीक है, दो सेंटेंसेस है जो बाय द टाइम से कनेक्टेड है. ट्राई टू सॉल्व वंस. फ्यूचर इन जनरल. Are you guys trying to answer it? Because I don't think it is so much difficult that you are taking this much of time. Ma'am, after this exercise, can you please go back? I mean, can you please explain the future perfect tense once more? Because I was busy, I mean, in writing notes, so No issues. I'll do that. Don't worry. if it's possible, Yeah, time definitely. remains. Yeah. Don't worry. Don't worry. I'll explain. मेरे बाद किसी की कोई क्लास नहीं है ना, तो डोंट वरी, आई डू इट. सी बेसिकली तुम लोग कोई आंसर कर रहे हो इन क्वेश्चन को कि या मैं खुद ही कर रही हूँ? तो कुछ तो बता दो यार, मुझे ऐसे समझ में नहीं आता. मैं ऐसे बोर हो जाती हूँ अगर तुम लोग आंसर नहीं करते. तो एटलीस्ट लेट मी नो दैट यू गाइस आर ट्राइंग और नॉट. There's no reply, there's nothing. I'm waiting. 5 मिनट हो गया, 2 सेंटेंसेस हैं, 5 मिनट हो गया, बैठे हैं इंतजार में कि कुछ तो बोलेंगे बच्चे.
Rando. What I have already explained about future perfect tense, Devapriyo, is this. देखो perfect tenses जो होते हैं ना, perfect tenses, वो हमेशा completion of action का sense देते. That's what I tried to explain. It always gives the sense that the action are going to be completed. ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट में ये था कि एक्शन अभी अभी खत्म हुआ है. पास्ट परफेक्ट में ये था कि एक्शन खत्म हो चुका, पास्ट में खत्म हो गया. ठीक है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये होता है कि कोई एक्शन फ्यूचर के किसी टाइम तक खत्म हो चुका होगा. ठीक है. जैसे वहां पर एग्जाम्पल एक लिखा हुआ था, वी विल हैव कंप्लीटेड द सिलेबस बाय द एंड ऑफ जनवरी. मतलब जनवरी के एंड तक हम सिलेबस खत्म कर चुके होंगे. तो कोई काम जो फ्यूचर में कंप्लीट होगा उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. दिस इज व्हाट इज द यूसेज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. बट ये कंपाउंड सेंटेंसेस में हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं, दैट आई लेट यू नो. अभी मैंने आपको बताया, जस्ट 5 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि बाय द टाइम के साथ दो एक्शन कनेक्टेड है. ठीक है. बाय द टाइम के साथ दो एक्शन कनेक्टेड है. अब यहां पर लिखा है बाय द टाइम आई स्टार्टेड द वर्क दे रिटर्न फ्रॉम द मैरिज. तो व्हाट आई सेड कि वी विल लुक एट द सेकेंड एक्शन एंड फर्स्ट एक्शन, है ना. अब यहाँ पर क्या है कि जब बाय द टाइम मतलब जैसे ही जब तक मैंने अपना काम स्टार्ट किया वो लोग मैरिज से वापस आ गए. ठीक है. तो पहले क्या हो गया, पहले वो लोग मैरिज से वापस आ गए, तब उसने अपना काम स्टार्ट किया. That is what is the meaning of this sentence. So this action will be definitely in past perfect tense and second action will be in simple past tense. ठीक है. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, by the time I started the work they had returned from the marriage. अब बेटा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूसेज क्या है. बाय द टाइम के साथ अगर सिंपल पास्ट टेंस है, एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डाटा फ्रॉम द बाय द टाइम ओनली, बाय द टाइम के साथ अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो आने वाले क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया जाएगा. ठीक है. अगर बाय द टाइम के साथ सिंपल पास्ट नहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आने वाले क्लॉज में फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज किया जाएगा. ठीक है. जब यहां पर सिंपल पास्ट है तो यहां पर पास्ट परफेक्ट होगा, जब यहां पर सिंपल प्रेजेंट है तो यहां पर फ्यूचर परफेक्ट होगा. यहां पर सिंपल पास्ट था तो इट विल बी हैड रिटर्न एंड बाय द टाइम आई स्टार्ट द वर्क they will have returned from the marriage. They will have returned from the marriage. जब तक मैं अपना काम शुरू करूंगी तब तक वो मैरिज से आ चुके होंगे. ठीक है. It is again defining the thing in future. So this is what is the usage of future perfect tense. Am I clear with this or not? किस बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ. आगे. इंद्रनील अनम्यूट योरसेल्फ. इंद्रनील अनम्यूट करो बेटा खुद को. Yes, ma'am. या. गिव मी द यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विथ रेस्पेक्ट टू कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस के रेस्पेक्ट में जो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज बताया है उसको रिपीट करो. Present perfect. अभी मैंने बताया था ना जब दो सेंटेंसेस सिंस से कनेक्ट होंगे तो क्या करोगे. हाँ हाँ हाँ. तो सीन्स हो प्रेजेंट परफेक्ट. हाँ सीन्स होगा तो सीन्स का पहले प्रेजेंट परफेक्ट आएगा. सीन्स यदि बीच में होगा कंजंक्शन की तरह तो सीन्स के पहले प्रेजेंट परफेक्ट आएगा और सीन यदि स्टार्टिंग में होगा तो सेकेंड सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट आएगा. ठीक है.
इंद्रनील ने जो बोला वो समझ में आया सबको? आया समझ? हे भगवान। आया, ठीक है इंद्रनील, वेरी गुड, आपका आंसर करेक्ट है। खैर मुझे तो समझ में आया, तो डेफिनेटली आपका आंसर करेक्ट है। साहिस्ता, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. Sahista, in a similar manner, give me the uses of past perfect tense. मैम पास्ट परफेक्ट टेंस में जो चीज़ें सबसे पहले हो चुकी होंगी उनको पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं, और जो उनके बाद आई सेकंड नंबर पर उनको सिंपल पास्ट में लिखते हैं। What are the conjunctions that can be used in the past perfect tense? हम बिफोर यूज कर सकते हैं, आफ्टर यूज कर सकते हैं। अगर बिफोर के बाद वाला सेंटेंस जो होगा वो सिंपल पास्ट में होगा, जो कि सेकंड एक्शन होगा, और बिफोर से पहले वाला पार्ट सेंटेंस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, जो सबसे पहले हो चुका होगा। तो जो सबसे पहले हो चुका उसको पास्ट परफेक्ट में यूज करेंगे। I would suggest, Sahista, I would suggest one thing to you. The only thing, बेटा पहले आफ्टर के सेंस में याद मत करो इसको, इस तरीके से ध्यान में रखो कि फर्स्ट एक्शन विल बी इन पास्ट परफेक्ट एंड सेकंड एक्शन विल बी इन सिंपल पास्ट टेंस। दैट्स इट, ठीक है? ज्यादा क्लैरिटी आएगी माइंड में, क्योंकि कंजंक्शन उसी को कह रही हूँ जो सबसे पहले हो चुका। वो मैंने तुम्हारा फर्स्ट लाइन में समझ गई थी, जब आपने सेकंड लाइन में बिफोर आफ्टर को एक्सप्लेन किया ना, तो वहीं पर कंफ्यूजन होना शुरू होगा, ठीक है? एंड उमंग, अनम्यूट योरसेल्फ। Umang, give the uses of future perfect tense. Ma'am, the action that will be done by some another action, by then, like जैसे इसमें लिख रखे हैं by the time I start the work they will have returned from the marriage. So this is future perfect tense. Devapriya, explain it again. So I think the baseline is something that is anticipated to be completed in the future. So if it starts with a connector like by the time, say for example, or when. So and if it starts with the simple present form, then the other action will have the future perfect tense in it. Perfect. This is the thing. Okay, so I hope perfect tenses are clear to you guys, right? So in the next class, we will be doing perfect continuous tense, and then our tense will be completed. Then there will be a short test of subject verb agreement and tense. Then we will carry forward with the parts of speech. Clear, guys? Okay? Chalo. Bye bye. Take care. See you tomorrow. Thank you.